तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए ये सम लाया हूँ। ये सम आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम में मिल सकता है। गवर्नमेंट सर्विस के कोई एग्ज़ाम हो, या फिर जॉइंट एंट्रेंस हो, या फिर ISI का कोई एंट्रेंस हो, या फिर कैट मैट मैनेजमेंट का कोई एंट्रेंस हो, इस टाइप ऑफ सम आता है। तो इम्पॉर्टेंट सम है। तो देखो, the expense of a boarding house is partly fixed and partly vary with the number of boarders. Okay, now each boarder pays rupees 390 a month. Now the profits are rupees 54 per head per month when there are 50 boarders, and rupees 64 per head per month when there are 60 boarders. Now what is the profit per head per month when there are 80 boarders? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 72.50, 74.50, 76.50 एंड 78.50। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फिर से पढ़ लो क्वेश्चन को। द एक्सपेंस ऑफ अ बोर्डिंग हाउस इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरी विद द नंबर ऑफ बोर्डर्स। नाउ ईच बोर्डर पेज रुपीज 390 अ मंथ. The profits are rupees 54 per head per month when there are 50 boarders, and rupees 64 per head per month when there are 60 boarders. Now what is the profit per head per month when there are 80 boarders? Okay, अब इसका solution देखो। ठीक है, क्या है? The profits are rupees 54 per head per month when there are 50 boarders in the boarding house. ठीक है, clear? Now each boarder pays rupees 390 per month. बोल दिया गया है। देखो, each boarder pays rupees 390 a month. Now hence the real expense on per boarder of the boarding house, real expense of the per boarder of the boarding house क्या होगा? 390 minus 54, that is rupees 54। ये है प्रॉफिट और ईच बोर्डर पे कर रहा है 390, तो एक्सपेंस क्या होगा? 390 माइनस 54, दैट इज 336 अ मंथ। देयरफॉर टोटल एक्सपेंस ऑफ द बोर्डिंग हाउस व्हेन देयर आर 50 बोर्डर्स, दैट इज रुपीज 336 इंटू 50, दैट इज रुपीज 6800 पर मंथ। ठीक है, अ मंथ। और क्या दिया होगा? देखो, the profits are 54 per head per month when there are 50 boarders, and rupees 64 per head per month when there are 60 boarders. मतलब the profits are rupees 64 per head per month when there are 60 boarders in the boarding house. Now hence the real expense on per boarder of the boarding house when there are 60 boarders क्या होगा? 390 minus 64, 64 प्रॉफिट है, 390 एक एक बोर्डर पे कर रहा है, तो एक्सपेंस क्या होगा? 390 minus 64, that is 326 per month on per boarder. Therefore total expense of the boarding house when there are 60 boarders, 326 into 60, that is rupees 19,560. Clear? Now let C1 and C2 denote the fixed part and variable part. कहाँ है? 6 part, yes, and variable part. ठीक है, and variable part of expenses when there are n boarders in the boarding house. ठीक है, C1 है फिक्स पार्ट, यहाँ पर बोल दिया गया है द एक्सपेंस ऑफ ए बोर्डिंग हाउस इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरी विद द नंबर ऑफ बोर्डर्स। तो C1 and C2 denote the fixed part, and the C1 is the fixed part and so C2 varies with the n means number of boarders. तो C2 क्या होगा? इज इक्वल टू Kn, where K is constant of variation. ठीक है, now let C denote the total expense when there are n boarders. तो C क्या होगा? C1 plus C2, C1 C2 क्या है? Kn, C1 plus Kn, then C is equal to C1 plus Kn. इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब क्या है ना? C is equal to 16,800 when n is 50। जब 50 बोर्डर्स था, टोटल एक्सपेंस ऑफ द बोर्डिंग हाउस व्हेन देयर आर 50 बोर्डर्स क्या था? 16,800। तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो क्या होगा? इक्वेशन 1 क्या है? C इज इक्वल टू C1 प्लस Kn। तो C क्या है? 16,800
तो C1 प्लस 50K इज इक्वल टू 16,800, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अगेन C इज इक्वल टू 19,560 व्हेन n इज इक्वल टू 60। देखो टोटल एक्सपेंस ऑफ द बोर्डिंग हाउस व्हेन देयर आर 60 बोर्डर्स, 326 into 60 दैट इज 19,560। तो ये क्या होगा, C1 प्लस 60K इज इक्वल टू 19,560। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 क्या था, ये C1 कट जाएगा, 60K माइनस 50K इज 10K, और 19,560 माइनस 16,800 क्या होता है 2760। तो क्या होगा 276, ठीक है। सो पुटिंग K इज इक्वल टू 276 इन इक्वेशन 2, क्या होगा C1 प्लस 50 इंटू 276 इज 16,800। तो C1 क्या होगा 50 इंटू 276 इज 13,800 16,000। तो C1 क्या होगा 16,800 माइनस 13,800, तो C1 क्या होगा 3,000। तो फिक्स पार्ट क्या था, तो फिक्स पार्ट द एक्सपेंस ऑफ ए बोर्डिंग हाउस इज पार्टली फिक्स्ड। हम लोगों ने यहाँ लिखा है लेट C1 एंड C2। C1 क्या था फिक्स पार्ट ऑफ द एक्सपेंस, तो फिक्स पार्ट क्या हम लोगों को पता चल गया है, ठीक है। फिक्स पार्ट है 3,000, ठीक है। ना पुटिंग द वैल्यूज ऑफ C1 एंड K इन इक्वेशन 1 क्या होगा, C इज इक्वल टू 3,000 प्लस 276 एन। C इज इक्वल टू क्या था C1 प्लस K एन। C1 के जगह 3,000, K के जगह 276 हम लोग पुट कर रहे हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लो, ठीक है। Now let X denote the total expense of the boarding house when there are 80 boarders, ठीक है। तक then C is equal to X when n is equal to 80। The from equation 4 हम लोग क्या बोल सकते हैं, X is equal to 3,000 plus 276 into 80 that is 25,080। Therefore total expenses are rupees 25,080 when there are 80 boarders। total expense है, but 80 boarders pay रुपीज़ 390 इंटू 80। एक बोर्डर 390 पर मंथ पे करता है, ये पहले ही हम लोगों को क्वेश्चन में पता चल गया। देखो ईच बोर्डर पेज रुपीज़ 390 अ मंथ, तो 80 बोर्डर्स कितना पे करेगा, तो 80 बोर्डर्स कितना पे करेगा, बट 80 बोर्डर्स पे रुपीज़ 390 820 दैट इज 31,200 पर मंथ। सो देयरफॉर टोटल प्रॉफिट ऑफ द बोर्डिंग हाउस व्हेन देयर आर 80 बोर्डर्स 31,200 माइनस एक्सपेंस 25,080 क्या होगा 6120 पर मंथ। टोटल प्रॉफिट ऑफ द बोर्डिंग हाउस व्हेन देयर आर 80 बोर्डर्स, तो प्रॉफिट रिक्वायर्ड प्रॉफिट पर हेड पर मंथ क्या होगा 6120 डिवाइडेड बाई 80, तो 76.50 आ जाएगा। मतलब ये ऑप्शन नंबर ABC 76.50 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर, थैंक यू।